through my slides. Can you all see this particular my screen? Can you all see? Yes, sir. Yes, sir. Okay. You can type vkaurora.com. Anytime it will be available to you. Every year I update it. In this particular VK Aurora, there is one head like this startup support. In this startup support, you will find here pitch deck template, right? These all are the actually exercises which we conduct time to time. This is pitch deck template. And it's loading, and this is pitch deck template. Every year you will find that I update it every year, means next year you will find it for 2021. Okay. Yeah. Before we go for understanding the terminologies and terms which are associated with this term sheet, this is important that please note that the drafted template format of pitch deck is for early investment only for the generalized business idea. Depending upon products, processes or services, sectors, industries, and round of funding. Matlab, round of funding means it is for angel investor or Series A, Series B, Series C funding. These contents may differ. Okay. Any question in this? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक जनरलाइज्ड पिच डेक का फॉर्मेट है. आपकी इंडस्ट्री, सेक्टर, प्रोडक्ट को देखते हुए थोड़ा बहुत इसमें चेंज हो सकता है. एनी क्वेश्चन? सर, हम जो पिच डेक सबमिट करेंगे उसके बाद जो इंक्यूबेशन के लिए हमें आपकी मदद चाहिए होगी, या तो you all will also evaluate ना कि हमने ठीक से करा है कि नहीं करा है और उसमें क्या चेंजेस करने होंगे before you decide whether you all will help us incubate it? मतलब if you apply in our incubation center, no? हाँ जी. हाँ, definitely. जी, thank you sir. If you are also applying in some other incubation centers, then too our services will be extended. Right, Means sir. if you just want to ask or just want to have a discussion over these, see, the purpose of this particular assignment is not to means overload you, or not to ask. I am not going to ask something which is not at your particular level. इस एज में पिच डेक का फॉर्मेट अच्छे से पता होना, this is a necessity. जी, Right? जी. So unless you are not knowing it, you difficult हो जाएगा. And what I said in the beginning, please remember that it should be for the vice versa purpose. Please look at like this, that you are a Investor, possible investor. yeah, you are an investor at one hand and you are applicant at second hand. So जी. feel it like this. And only मतलब अपना आप जब pitch deck बना लोगे तो खुद से सोचो कि इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टर होते तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं. Say if you are going to invest your money in any of the project, आप ऐसे तो नहीं दोगे ना. जी. तो पैसे आप दो तो आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, जस्ट आस्क देम. तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा. तो शोइंग यू दिस स्लाइड पर्पस इज दिस ओनली दैट यू कैन have different means for different products, processes, services, industry rounds in sectors it may differ. चलो मैं नेक्स्ट में आता हूँ. नेक्स्ट पॉइंट ये जो है, ये आपकी फर्स्ट स्लाइड बन करके आती है. राइट, ये स्मॉल छोटी कैसे होगी?
But also we have a similar kind of doubt as Priyanka ma'am asked. A student from yesterday I received 2-3 calls. कि sir, this assignment we are submitting, will it be directly considered as a project for अन्वेषण activity? नो नो to नॉट एट ऑल, वो बिल्कुल नहीं है, yes, this वो is बिल्कुल नहीं है. what दिस I इज cleared कि अन्वेषण is an another part. This is just part of your GEC course for 3-month course. बस बस हाँ, दिस इज ओनली द पार्ट ऑफ इट. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. यस सर. ठीक है ना, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ बनाया कैसे जाता है, अब आगे आपको करना है. अच्छा, ये चांस की बात है क्योंकि वी आर मीन्स आस्किंग पीपल टू मेक दिस काइंड ऑफ टेम्पलेट. तो ये चांस की बात है कि मेजर जो इसके कंटेंट्स है इट इज सिमिलर टू द ड्राफ्ट ऑफ पिच डेक व्हिच यू आर आस्किंग फॉर. If you go to our incubation center website now, you will find that the similar kind of pitch deck format is available over there. ठीक है ना, ये चांस की बात है. Otherwise, also in different incubation centers, you will find that 80% it is same, right? चलो नेक्स्ट में आऊं मैं. चलो नेक्स्ट है ये कि अच्छा ये आपने कर लिया. अच्छा, नेक्स्ट में है कि ये आप लोग का फर्स्ट पेज आता है. यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड. तो यहाँ पर you will have your own startup logo. If you have prepared it, it is fine. If you are not prepared it, just prepare it. कोई भी लोगो आप बना लो जो भी आपको ठीक लगे. Right? Project name or startup company name. Startup company name you will be able to write only if your company is registered. If it is not registered, just write a project name. जैसे कि for example, can I ask you कि आप लोग बताइए कुछ project name जो आपने अभी तक बनाए हो अपने. बेटा आप लोगों ने अपनी अभी इसमें क्या लिखा है प्रोजेक्ट टाइटल में. सर मे आई शेयर माइन सर. आप अभी अपना मुझे प्रोजेक्ट का नाम बता दो. सर मैंने तो ऐसे ही बिजनेस केस फॉर सोशल मार्केटिंग स्टार्टअप. बिजनेस केस क्यों रखा है, बिजनेस केस फॉर. सर एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था क्या करूं, इसीलिए आई सेड आई जस्ट कीप समथिंग. जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक लाइन में बता सकते हो व्हाट इज योर बिजनेस. सर इट्स अबाउट using nirmalya to create hand rolled agarbattis. ओके, चलो इस पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. इट नीड्स सम थिंकिंग बट इट कुड बी लाइक दिस दैट समथिंग स्मेल वर्शिप. ठीक है ना. जी. और some products and products private limited, that could be the name of company. Or if the company's name is not there, you can simply put your project name. I hope you are understanding it ना. जैसे कि मान लो कि if your जी सर. company is you are going to make it in workshop in logistics, then you can make it like this, that Priya Logistics Private Limited, right? Or if it is like this, that Sigma Power, you can write on Sigma Power as the name of the title of this particular project. आप इस तरीके We से can देखो make कि an assumption फिलहाल ना सर, at least to हाँ हाँ, submit. या जैसे कि naukri.com is a name, is जी. a trademark taken by Info Edge company, ठीक, Info Edge Limited. जी. naukri.com is a trademark registered by Info Edge Limited company. तो यहाँ अगर ये कंपनी है, then you will write like this, that Info Edge Private Limited. And if it is a project and company has not been incorporated yet, तो उसमें सीधे लिख दोगे naukri.com. जी. Right, like this, ठीक है ना. लेकिन हाँ, ये कोई केस स्टडी नहीं है, ये कोई रिसर्च नहीं है, तो वो सब वर्ड्स नहीं आएंगे यहाँ पे.
just जी put it like this, that this IoT and robotics private limited, ये चल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। अब आपने जो मुझे अगरबत्ती का बताया, मेरे दिमाग में हिट नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर बहुत अच्छा सा वर्ड होता था इसके लिए, तो दैट इज नॉट हिटिंग इन माय माइंड, लेकिन हाँ कुछ ऐसा करके जैसे सिग्मा वर्शिप, इसके नाम से आप लोग आप अगर ट्रेडमार्क ले लेते हो तो दैट कुड बी द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क वुड बी योर कंपनी, जो भी कंपनी हो। ठीक है, राइट। राइट, ठीक है। Excuse me, sir. या Just like सर मेरा जो आइडिया है वो एक डाटा एंट्री पे एक वेबसाइट बनाने का। डेटा एंट्री पे, हाँ जी सर, तो ऐसा कुछ वेबसाइट टाइप मेरा स्टार्टअप आइडिया, तो इज इट ओके? नहीं बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ओके हाँ, तो So- इसमें भी आप सर, तो इसमें लोगो बनाना मतलब जरूरी है? देखो, लोगो बनाना जरूरी तो है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगो प्रोफेशनल से बनाइए। अगर आप सिर्फ अपनी कंपनी का नाम भी लिख देते हो तो दैट इज आल्सो लोगो फॉर मी। कोई स्टाइल से अपना नाम लिख दो, ओके सर। ठीक है ना। जैसे कि कोका कोला का एक लोगो है, तो सर पेप्सिको का एक फॉन्ट लोगो है। वगैरह कोई भी यूज करके जो आप Yes. सिग्निफाई कर सके हमारा प्रोजेक्ट राइट, नियरेस्ट, मतलब जो हमारे हिसाब से होगा, इट मे नॉट बी राइट बट एटलीस्ट अजम्पशन करके। राइट। अभी के लिए फिलहाल बना लो। हमें कौन सा, मतलब इसमें कोई अवार्ड तो हो नहीं रहा है ट्रेडमार्क बनाने का, लोगो बनाने का। जी जी। अभी आप कुछ भी बना लो, लेकिन मैं इसलिए चाहता हूँ आप लोग बनाओ ताकि आप लोगों को पता चले ये सब स्टेप्स हैं जब कंपनी बनाई जाती है। तो ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको क्वेश्चन। पिंकी, यू आर आस्किंग, यस सर, आई एम क्लियर। है ना। अगर Okay. बाई चांस आप नाम नहीं लिखना चाहते हो, कोई लोगो लिखना चाहते हो, जैसे एयरटेल का लोगो है, इसको ध्यान से देखो, ठीक है ना, और महिंद्रा का लोगो है। आसपास, आपके आसपास जिस रूम में आप बैठे हो, इधर तो देखो, आपको कई सारे लोगो दिख जाएंगे। देखो आप आसपास, एक तो लैपटॉप का लोगो दिख जाएगा आपको। देखो कौन सा लैपटॉप आपके पास है, आपके पास, आपके हाथ में मोबाइल है तो आपको मोबाइल का लोगो दिख जाएगा, कंपनी का लोगो, राइट। अगर ये सब भी नहीं है तो अन्वेषण फाउंडेशन का लोगो देख लो। ओके सर। तो इस तरीके का कोई भी लोगो, व्हाट एवर यू लाइक, 2 हो 3 हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू रजिस्टर इट राइट नाउ एनीथिंग, बट यस इट शुड बी ओवर देयर। श्योर सर। कोई और क्वेश्चन अभी तक? अगर इफ यू आर हैविंग एनी वेबसाइट यू कैन राइट डाउन इट, इफ यू आर नॉट हैविंग एनी वेबसाइट यू आर simply having a page on LinkedIn or Facebook or Instagram, to write down that also, that will also work, मतलब something from where we can have a connection with your company or project. So sir, I have to build a website. नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। देखो पैकेट में लिखा हुआ इन केस ऑफ कंपनी है, अगर कोई वेबसाइट में, अगर इफ इट इज एप्लीकेबल, यू आर हैविंग वेबसाइट, देन यू कैन राइट डाउन। इफ यू आर नॉट हैविंग एनी वेबसाइट, जस्ट लीव इट। लाइक मेरा जो आइडिया होगा वो सिर्फ मेरे पिच पे होगा, लाइक मुझे प्रैक्टिकली या कुछ बनाना नहीं है, बस नहीं, अपना। कुछ भी नहीं बनाना बेटे, पूरी Okay. तरीके से डमी है। मैं फिर से Okay. बोल रहा हूँ बेटे, द पर्पस इज ओनली दिस, दैट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ पिच deck is prepared, and at the same time you should be able to understand basic evaluation part of any pitch deck from the point of view of मतलब कि entrepreneur and from the point of view of investor, ठीक है ना। ओके सर। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, इस बात को आप सोचो, इसका मतलब है जो मैं कह रहा हूँ। ये असाइनमेंट से आप लोगों का लेवल बहुत ऊपर तक जाना चाहिए। यू शुड बी एबल कि हो क्या रहा है, श्योर सर। है ना। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क। So like we are having a company with the name Kepler Limited, and can we have logo with the same Kepler in a different font? राइट, यू कैन हैव। Okay, thank you, sir. इज दिस अ कंपनी कैपिटल लिमिटेड? No, sir. I जस्ट फॉर एग्जांपल ना। yes, sir. हाँ, अगर बेटे आप लोग कंपनी का इस तरीके की एग्जांपल लिखते हो ना, तो डोंट राइट लिमिटेड वर्ड। लिमिटेड वर्ड थोड़ा बड़ी कंपनी हो जाती है, जस्ट राइट प्राइवेट लिमिटेड। ओके, Okay, sir. और चाहो उसको ब्रैकेट में लिखो क्या प्रपोज्ड है, ठीक है, प्रपोज्ड। Okay, sir. PDF of this pitch deck template is already shared in Google Classroom. You can access it from there, or you can access it from directly Sir's website. Sir is referring देखो, to. हाँ देखो, किसी ने लिखा है कि विल यू बी शेयरिंग दिस PDF यू आर रेफरिंग टू,
तो प्रियांशी, इट हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड विथ यू, ठीक है ना, जैसे कि राहुल ने बताया है। और अगर आप चाहोगे तो आप वेबसाइट vkora.com से इसको डाउनलोड कर लेना। याचिका बोल रही है कि सर, आई रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन हैकाथॉन, सो देयर वर अ पिचिंग राउंड, so it is the same kind of thing, so it is 100% same kind of thing. Okay याचिका, it is same, 100% same. बस मैंने आपको फॉर्मेट दिया है, और ये भी मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी फॉर्मेट में बनाओ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप लोगों को इस फॉर्मेट का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मेट में मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें इंक्लूड कर दूं। इफ यू वांट टू फॉलो सम अदर फॉर्मेट तो दैट इज आल्सो पॉसिबल, लेकिन हाँ, ये मेजर कंटेंट्स हैं, ये होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि अभी ये सेशन हो रहा है, इसमें कई सारे लोगों ने अटेंड नहीं किया होगा। अब बाकी लोग क्या करेंगे, बाहर से बनवा लेंगे या पुरानी कोई इस तरह की पिच टैग दे देंगे जिसका कोई मीनिंग नहीं है, तो डेफिनेटली इसका थोड़ा बहुत फर्क उनके मार्क्स में पड़ सकता है। ये जो मैं आपको शो करने जा रहा हूँ, ये मिनिमम कंटेंट्स हैं, शुड बी ओवर देयर। हाँ, अदर क्वेश्चन, मैं आगे चलूं? यस सर। एलिवेटर पिच। अब इस बात को थोड़ा सा 2 मिनट की मेरी बात जरा समझ लो, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। एलिवेटर पिच का जो मतलब है, वो मतलब इंडिया में कई लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग फॉलो नहीं करोगे। एलिवेटर पिच का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट से, अपने बिजनेस से इमोशनली कितना जुड़े हुए हैं उसको शो करना। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप अपने प्रोडक्ट से और विथ योर बिजनेस, हाउ इमोशनली यू आर अटैच विथ, हाउ इमोशनली यू आर अटैच विथ योर प्रोडक्ट एंड ऑब्लिक और योर बिजनेस, this should be reflected here. This is the meaning of elevator pitch. लेकिन हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, हम लोग एलिवेटर पिच में शो करने लग जाते हैं कि हमारी कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगी, क्या क्या प्रोसेसेस यूज करेगी और क्या क्या सर्विसेज बनाएगी। तो आप चाहो तो इन दोनों चीजों को जोड़ दो यहाँ पे, लेकिन एलिवेटर पिच का जो मतलब है, जो एलिवेटर स्पीच का जो मतलब है, वो ये है, जो फर्स्ट स्लाइड के रूप में आता है, वो ये है कि व्हाई एंड हाउ यू आर सो मच लिंक्ड इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली विथ योर बिजनेस आइडिया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस पर्टिकुलर स्लाइड की क्या वैल्यू है, हम ऐसा क्यों पूछना चाहते हैं, या इन्वेस्टर इसमें क्यों कंसीडर करना चाहता है कि यू टेल अस दैट अमंग मेनी अपॉर्चुनिटीज व्हाई डिड यू पिक दिस वन। तो क्या जवाब होगा आपका? So maybe because it same kind of business is running from in our family from a long time. That's why we are emotionally connected to it. राइट, निधि ने बहुत सही चीज बोली एक, कि वो ये चेक करना चाह सकते हैं कि क्या इसका आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका, उसकी इसका सीड क्या है, इसका सीड आप हो कि पहले से चला आ रहा है ये। राइट निधि, ये कहना चाह रही हो ना? Yes, sir. ठीक है। इसके अलावा निधि, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ये है कि इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसे लगाना चाह रहा है, ठीक है ना। वो ये जानना चाहता है कि आप अगर इमोशनली इसके साथ अटैच नहीं हो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप छोड़ के भाग जाओगे इस बिजनेस को 6 महीने बाद या 9 महीने बाद या 1 साल के बाद। आर यू Yes, गेटिंग sir. माय पॉइंट? हाँ, तो Yes, sir. ये ना हो कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो, उस आदमी से आपने 50 लाख 60 लाख या 1 करोड़ रुपए ले लिया, 1 साल 2 साल आपने बिजनेस किया, फिर आप भाग गए, तो ऐसा हो जाएगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए हम क्या करते हैं, डू यू नो अबाउट द टर्म शीट? टर्म शीट कराया है ना आपको? किसने कराया था आपको? राहुल ने कराया, शायद आपने कराया है। टर्म शीट कराया होगा आप लोग को। अरे बोलो बेटे, ऐसे साइलेंट हो जाने से कैसे काम चलेगा? Yes, sir. कराया है. कराया है ना। तो टर्म Yes. शीट में एक पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं वेस्टिंग। वेस्टिंग सुना है आप लोगों ने? No, sir. VESTING कराया होगा बेटा, आप लोग भूल गए हो, नोट करो VESTING। वेस्टिंग में क्या होता है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जो भी पैसे मांग रहा है, वो कितने साल तक उस पर्टिकुलर बिजनेस में वेस्टेड रहेगा। वेस्टेड रहेगा मतलब छोड़ के नहीं भाग पाएगा, राइट? Oh, so maybe एक हाँ, एग्रीमेंट की तरह. एग्रीमेंट नहीं, टर्म शीट बेटा एग्रीमेंट नहीं है। टर्म शीट एक एग्रीमेंट ही मान लो उसको, लेकिन ये लीगल एग्रीमेंट नहीं है। इट इज बिटवीन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर। जो लीगल एग्रीमेंट होते हैं उनका क्या नाम होता है? शेयर परचेज एग्रीमेंट, SPA, राइट? शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, SHA, शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट, SSA,
और लास्ट में शेयर सब्सक्रिप्शन एंड शेयर होल्डर एग्रीमेंट, SSHA, ये सब एग्रीमेंट है। आर यू गेटिंग मी? नॉन कंप्लीट sir. एग्रीमेंट NCA, ये नॉन कंप्लीट एग्रीमेंट है। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ये अलग है। लेकिन उससे पहले दो चीजों का काम किया जाता है जब भी हम इस तरीके के एग्रीमेंट साइन करते हैं बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर। वो दो चीजें कौन कौन सी है? नंबर 1 टर्म शीट एंड नंबर 2 ड्यू डिलिजेंस। नाम सुना आप लोग ने इन दोनों का? सर बेटे सेकंड टर्म का नहीं सुना सर। ड्यू डिलिजेंस बेटे बहुत कॉमन टर्म है। डीडी मैं सुबह से शाम तक कह रहा था वर्कशॉप में डीडी के ऊपर होती है। आप लोगों को कहाँ से डीडी क्लियर करनी है? डीडी बहुत कॉमन वर्ड है बेटे, इसका फुल फॉर्म होता है ड्यू डिलिजेंस, राइट? ओके सर, ओके सर। हाँ, जब आप किसी कंपनी का, जैसे इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी में 1 करोड़ रुपए लगाए और उसने आपसे शेयर परचेज किया है 20% या 25%, उससे पहले बहुत सारी चीजों को ड्यू डिलिजेंस किया जाता है बेटे। क्लियर है ये बात? अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, जब भी हम ये डीडी, जब हम एंजल इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं तो ऐसे केस में बहुत ज्यादा डीडी नहीं होती, ड्यू डिलिजेंस नहीं होती है, राइट? हम नॉन कंप्लीट एग्रीमेंट या नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कर लेते हैं, वो काम कर जाती है हमारी डीडी में। लेकिन जब हम लोग वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं, ध्यान से सुनना बेटे मेरी बात, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं तो डीडी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, दैट इज ड्यू डिलिजेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब तो पता है ना आप लोग को? मतलब कि लीगली क्या क्या चीजें आप लोग को चेक करनी है, आपको देखना है कि लीगली आप बिल्कुल सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कोई मतलब कि गवर्नमेंट या कोई थर्ड पार्टी या कोई अनरेस्ट आपको परेशान ना करे बाद में। इस प्रोसेस को कहते हैं ड्यू डिलिजेंस, राइट? अच्छा, अब वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म में भी ना आप लोगों को उसने जरूर कराया होगा, उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल नोट्स किए हैं आप लोग ने बेटे? कन्वर्टेबल नोट्स? No, sir. I बेटे don't remember. कन्वर्टेबल नोट्स किए होंगे Yeah, बेटे, शायद आपने कराया होंगे आपको कन्वर्टेबल नोट्स। आप लोग फिर एग्जाम कैसे पास करोगे बेटे? मैं तो आप लोगों ने फ्यूचर एग्रीमेंट और ऑन इक्विटी, ये टर्म सुना नहीं सुना आप लोगों ने? फ्यूचर एग्रीमेंट ऑन इक्विटी, yes, sir. ये सुने हैं। ये सुना आप लोगों ने ना? तो फ्यूचर एग्रीमेंट ऑफ इक्विटी में हम लोग कन्वर्टेबल नोट्स पे काम करते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि इन्वेस्टर कंपनी में, स्टार्टअप फर्म में पैसे लगा देता है, लेकिन ये डिसाइड नहीं होता है कि वो कितने % स्टेक्स लेगा, ये डिसाइड होगा बाद में। बाद में मतलब कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, जब कंपनी एक पर्टिकुलर रनिंग पर आ जाएगी। लेकिन कितने % शेयर लिया जाएगा ये उसी दिन से कैलकुलेट होगा जिस दिन उसने पैसे लगाए थे, राइट? तो ऐसे केस में ड्यू डिलिजेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर भी ये बात जानना चाहता है और एंटरप्रेन्योर भी बात जानना चाहता है कि जब उसने फंड किया था उस समय इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी। तो कई बार ये फेवर में जाता है एंटरप्रेन्योर के, कई बार ये फेवर में जाता है इन्वेस्टर्स के। लेकिन ड्यू डिलिजेंस पे अगर आपने नहीं किया है तो देखो, मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है, राहुल बता पाएंगे आपको। मेरे ख्याल से ये जो सब्जेक्ट था ये शायद आपने लिया था आप लोगों के साथ, ठीक है ना? तो आप लोग प्लीज ये फ्यूचर एग्रीमेंट ऑन इक्विटी ये काम, और जो यहाँ इंडिया में 3 तरीके के कन्वर्टेबल नोट्स होते हैं। लेकिन जनरली जो कन्वर्टेबल नोट्स हैं वो ये हैं कि आप शुरू में आप इक्विटी नहीं लेते हो, लेकिन वो इक्विटी उस पर्टिकुलर अमाउंट पर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद से 2 साल के बाद या 3 साल के बाद वो कन्वर्ट होती है। तो तब तक या तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता या उस पर इंटरेस्ट लगता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कन्वर्टेबल नोट्स शुरू में डेट के फॉर्म में हो सकते हैं और बाद में इक्विटी के फॉर्म पे चले जाते हैं। आप लोगों को मेरी टर्म्स समझ में आ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? Yes, sir. ना, तो ये इस तरीके से है। तो आई होप कि आप इसमें ड्यू डिलिजेंस, अभी मैं बता था टर्म शीट और ड्यू डिलिजेंस। अगर आप लोगों को इस स्टेज में ड्यू डिलिजेंस में बहुत ज्यादा काम नहीं करना है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने कोई क्वेश्चन डाला भी, आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर बन चुका है और उसमें ड्यू डिलिजेंस का कोई क्वेश्चन आई गेस नहीं है उस पर, तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन प्लीज टर्म शीट वगैरह आप लोग पढ़ के रखिए। टर्म शीट के फॉर्मेट अवेलेबल है, मेरी अपनी वेबसाइट में भी अवेलेबल होगा और गूगल में भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। टर्म शीट का बात पता होना चाहिए। टर्म शीट का मतलब ये होता है जिसपे इन्वेस्टर्स और आपके जो प्रोमोटर्स हैं वो मिल करके एक टर्म शीट को बनाते हैं। ये साइन भी हो सकती है, अनसाइंड भी हो सकती है। जब ये टर्म शीट बन जाती है तो लीगल आदमी के हाथ में इसको थमा दिया जाता है और उसके साथ मीटिंग करके इस टर्म शीट के ऊपर हम लोग ये एग्रीमेंट बनाते हैं जो कि साइन होता है, जिसको हम SPA या शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट बोलते हैं।
SPA स्लाइटली डिफरेंट होता है शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट के, राइट। अभी डिपेंड करता है कि कौन सी सीरीज पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि क्या होगा। जनरली अगर आप सीरीज ए की बात करें, चलो मैं वहां तक नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सीरीज ए में आप SPA से काम चला सकते हो, लेकिन जब आप सीरीज बी और सीरीज सी की बात करते हो तो ऑलरेडी पहले एक SPA बना हुआ है। उसके ऊपर क्या होता है कि शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट बनाया जाता है, बना हुआ होता है शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, उसके ऊपर हम शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट बना देते हैं। इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को SSHA बोलते हैं, शेयर सब्सक्रिप्शन एंड शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट, राइट। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ये टर्म शीट होती है उसमें एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब क्या है? कभी भी कोई इन्वेस्टर ये नहीं चाहेगा कि एंटरप्रेन्योर 1 साल, 2 साल या 3 साल में बिजनेस स्टार्ट करके भाग जाए, या एंटरप्रेन्योर ये बोले कि नाउ आई एम अ सीरियल एंटरप्रेन्योर, आई हैव स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर वेंचर, वी हैव गॉट और वी हैव अट्रैक्टेड से इतने करोड़ रुपीस का हमें इन्वेस्टमेंट मिल गया है, now I am moving towards or to some other company or to some other business venture because I am a serial entrepreneur। ये कई बार देखने में आता है कि कुछ लोग बदमाश होते हैं, वो इन्वेस्टर्स वगैरह से पैसे लेकर के फिर इधर-उधर भागने की कोशिश करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इन्वेस्टर इस चीज को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इन्वेस्टर एक वेस्टिंग का टर्म भी लेकर के आ जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, VESTING। इसमें कंडीशन ये होती है, जैसे कि कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस तरीके का फॉर्मेट होता है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर 4 इयर्स तक अपने स्टेक्स नहीं बेच सकता है, या 3 इयर्स तक अपने 90% स्टेक्स नहीं बेच सकता है, राइट, या 2 इयर्स तक अपने 60% स्टेक्स नहीं बेच सकता है। ऐसी कंडीशन क्यों लिखवाई जाती है? ताकि एंटरप्रेन्योर आपके साथ बंधा रहे। इसका दूसरा पार्ट, बी पार्ट या 1.2 या 1.3 पार्ट में ये चीज भी आती है कि ये जो एंटरप्रेन्योर है, ये 3 साल तक, 4 साल तक या 5 साल तक इसके अलावा कोई और बिजनेस या कोई और कंपनी में डायरेक्टर नहीं बनेगा, या कोई भी कंपनी को प्रमोट नहीं करेगा। इससे क्या होता है कि जो पैसे इन्वेस्टर लगा रहे हैं वो सिक्योर फील करते हैं कि हाँ, ये लड़का बिजनेस में रहेगा और इसके साथ काम किया जा सकता है। अभी आप लोग जब अपना बिजनेस करोगे, एट दैट टाइम आल्सो यू विल फाइंड सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कि इन्वेस्टर्स के पास आप जाओगे तो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन्वेस्टिंग, लेकिन इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एट स्पेशली इन अर्ली स्टेज में, क्योंकि अर्ली स्टेज में जनरली देखने को आता है कि लोग अपनी कंपनी छोड़ के किसी और में ध्यान लगाने लग जाते हैं। ठीक है ना? आप लोगों में से कई सारे लोग मैरिड होंगे, आप लोगों में से और उनके घर में बच्चे भी होंगे। ऐसे कौन-कौन लोग हैं? Yes, sir. Vipin this side. विपिन जी, आप बताइए, आपके बच्चे कभी बोलते हैं कि उनको ये चाहिए, फिर 2 दिन बाद उनका मन उखड़ जाता है, फिर बोलते हैं ये चाहिए, ऐसा होता है ना? Yes, sir. वो अपना मतलब एक फिक्स्ड वो नहीं होता, फोकस नहीं होता। हाँ, स्पेशली यंगर एज में उनको थोड़ा सा वो क्लैरिटी भी नहीं होती कि उन्होंने क्या करना है। हाँ, हाँ। तो थोड़े से ये ऑब्स्टिकल्स हैं जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पाते एंड देन दे डेविएट। शुरू बस में उनको लगता है कि हम ये लाइन पकड़ेंगे, इवन जैसे स्टडीज में है कि हम ये करते हैं, फिर नहीं कुछ टाइम के बाद अब मैं दूसरा सब्जेक्ट अच्छा लगता है फ्रेंड्स के साथ, सो पीयर प्रेशर वगैरह भी आता है। सो इट इम्पैक्ट्स देयर क्या कहते हैं डिसीजन मेकिंग एंड देयर थॉट प्रोसेस। अब अगर बाई चांस आप ये मानिए कि इन्वेस्टर पेरेंट हैं और जो बच्चे हैं वो स्टार्टअप के प्रमोटर्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? एक मतलब वेस्टिंग जैसे एक डॉक्यूमेंट में आप साइन करवा सकते हैं, दैट इज़ ऑल। है ना सर? तो ये वही चीज़ है। अब वेस्टिंग को स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? वेस्टिंग कैसे पता चलता है कि वेस्टिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी? वो उससे पता चलता है कि मतलब देखा जाए तो कोई छोड़ना चाहे तो कोई छोड़ सकता है। अब कब तक कोई इन्वेस्टर कोई कोर्ट केस करता रहेगा प्रमोटर के ऊपर? लेकिन हाँ, अगर इस तरीके का कोई स्टेटमेंट सामने आता है या दे आर फीलिंग दैट यू आर इमोशनली कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर बिज़नेस, तो अ, वो प्रेफ़र करते हैं इस तरीके की चीज़ों को होना। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एग्ज़ाम्पल बताया था, एक प्रेग्नेंट लेडी ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक फूड का। उसने बहुत अच्छी तरीके से उस एलिवेटर पिच में इस चीज़ को शो किया कि व्हाई शी हैज़ स्टार्टेड बिज़नेस इन ऑर्गेनिक फूड। उसने वो सारी-सारी चीज़ें बताई जो-जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी उसकी खुद की प्रेगनेंसी के टाइम पे। या फिर आप लोगों को मैंने रतन टाटा जी का एग्ज़ाम्पल दिया था। रतन टाटा जी ने जो एलिवेटर स्पीच दी थी उसमें कई सारे इंडिया के बाहर के लोग थे। इतनी ज़्यादा उसपे क्लैपिंग हुई थी। उन्होंने जब ये लाइन बोली थी कि आई स्टार्टेड मेकिंग नैनो और आई प्लान्ड ऑफ मेकिंग नैनो कार अंडर दिस टारगेट मैन्युफैक्चरिंग। द रीज़न वाज़ दिस कि वन्स आई सॉ अ मिडल क्लास फैमिली राइडिंग ऑन अ स्कूटर, अ पर्सन, अ वाइफ एंड 2 किड्स।
So he was just thinking about it. That can't they afford a 1 lakh rupees car? So that is why, and that is how this idea came in his mind to manufacture a car within a ambit of 1 lakh of rupees. अब सोचो जब ये बात कोई बाकी लोग सुनते हैं तो क्या उनको फील होता है? Someone is so much concerned about this particular gap which is coming in between Maruti 800 and a scooter. 1 लाख रुपए का अगर बेंचमार्क खाली है तो उसमें कोई आदमी कार प्रोड्यूस कर सकता है. It is like this. I hope it is clear to you ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जैसे कि कभी किसी के घर में किसी की डेथ हो गई ब्लड बैंक नहीं होने के कारण, उसने ब्लड बैंक का खोला डाला, तो ये देखो ये वो चीज है जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा. नाउ दैट इज व्हाई व्हाट आई एम अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट लुक इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ. राइट, डन. इन्वेस्टिंग इज आल्सो क्लियर टू यू. एनी क्वेश्चन? Yes, sir. No, sir. Now this kind of this you can make, right? And name, proposed designation. Proposed designation इसलिए क्योंकि कंपनी अभी बनी हुई नहीं है. Qualification, experience and key skills. If you want to insert some pictures, and those pictures can be inserted. My suggestion is this, that out of all these, at least 2 directors should be there. At least 2 directors. बाकी आप किसी के बारे में लिखो या ना लिखो, CXO या CEO या CRO हो नहीं हो, लेकिन हाँ 2 डायरेक्टर मिनिमम होना जरूरी है. Now in this particular slide, you can show that what are the problems you are going to solve through your startup, solutions which are already available in the market, and what is your solution. ठीक है ना, ये तीनों लाइंस को आप लोग एक बार पढ़ लो. आप चाहो तो उसको लाइन के फॉर्म में लिखो, चाहो तो उसको पिक्चर्स के फॉर्म पे डालो. इससे ये क्लैरिटी आती है कि आपका स्टार्टअप जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट में क्या स्पेस रखता है. Any question? Sir, since we are just beginners here and we just have an idea and we don't have a director and other people on board with us, नहीं कोई बात we are नहीं. just portraying, we are एक just director giving our आप हो. future plans, putting our future plans in this. बेटे देखो ना, Then, sir, who बेटे आपकी आवाज थोड़ी डिस्कनेक्ट हो रही है. मैं ये आप कौन बोल रहे हो? Sir, Dhriti है. हाँ, Dhriti, I think she is our student IGDTW. हाँ, Riti, are you there? She is there, but I think her network may have broken. So shall we wait? मतलब Riti, are you able to hear me? So she has left. I think network problems is there. Okay. रिति है नहीं, लेकिन रिति आएगी तो मैं बताऊंगा. रिति ये पूछना चाह रही है कि अभी हम लोग जस्ट बिगिनर्स हैं तो हम डायरेक्टर कैसे लिखेंगे, राइट ना? तो इसका आंसर ये है कि यहाँ पर आप लोगों को प्रपोज्ड लिखना है. प्रपोज्ड डेजिग्नेशन. प्रपोज्ड डेजिग्नेशन, ये वर्ड आप लोग देख पा रहे हो सब लोग. प्रपोज का मतलब क्या है कि अगर कंपनी बनेगी देन यू आर प्रपोज्ड. और जैसे रीति का कहना है डायरेक्टर कौन बनेगा, तो एक डायरेक्टर तो रीति अपना नाम लिखेगी और एक नाम किसी और का भी लिख सकती है. एनी ऑफ हर फ्रेंड, फादर, मदर, सिबलिंग, एनीवन. हमारी जो कंडीशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्टर बनने के लिए, दैट इज ओनली दिस दैट वन शुड बी इंडियन अबव 18 इयर्स ऑफ एज. दैट इज ऑल. वैसे प्रपोज्ड है, कोई कंपनी बनने नहीं जा रही है. इस फॉर्मेट में आपको आप स्टेक बनने का मतलब ये नहीं है कि आपने कंपनी बना ली है. It is only proposed. Is Riti back? Yes, sir. Riti, are you there? Yes, sir. I just joined in and my doubt is clear, sir. Thank you so much. हाँ, यह proposed है, proposed. It is not directed. नहीं, Riti, आप एक और चीज पूछना चाह रही थी. अब आप मुझे अपनी कंपनी के बारे में बताओ, जैसे क्या है आपकी कंपनी. आपने जो प्रपोजल भेज रही हो उसका पिच डेक का, उसमें कंपनी का क्या आप शो कर रही हो? Sir, basically, I'm putting forward my idea and how I'm going to execute it in the future. हाँ, ठीक है. Basically, I've linked the problem. I'm describing about the problem which the youth are facing, and then my solution through my business idea, and what are we giving, the future, like through our. Riti, Yes, then sir. you can write your name as one of the proposed director. Okay.
And the second name could be anyone, your friend, your family friend, or your family member, anyone, right? Sure, sir. Thank you, sir. I hope this is also clear to you. अब जैसे रीति ने अपना बिजनेस बताया, रीति यहाँ पर नंबर 1 है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू योर स्टार्टअप. व्हाट आर द टॉप प्रॉब्लम्स यू आर ट्राइंग टू सॉल्व फॉर योर कस्टमर्स ऑब्लिक न्यू अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव आइडेंटिफाइड. इसमें आपके बिजनेस के हिसाब से यहाँ पर क्या लाइन आएगी? So basically मेरे मतलब the problem that I've taken up according to that, the problem जो for example जिसका मतलब जिसका cure find करना is like difficult but we are giving a solution to it, like the problem जिसको हमने address किया अपने business में, business idea में. का मतलब ये कि आपकी ये प्रॉब्लम आएगी इसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग दिस स्टार्टअप, प्रॉब्लम्स विथ व्हिच यूथ आर फेसिंग एंड नॉट बीइंग सॉल्व्ड टिल नाउ दैट यू आर गोइंग टू एड्रेस, राइट? Yes, sir. ठीक है. अब आता है सॉल्यूशंस अवेलेबल इन द मार्केट. अब अवेलेबल मार्केट में सॉल्यूशंस क्या हैं? देयर आर नंबर ऑफ लाइफ एक क्वेश्चन सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर. इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू स्टार्टअप सर, अगर मैं जैसे 3-4 प्रॉब्लम्स है तो कैन वी कितने राइट सम काइंड ऑफ पैराग्राफ और सम कितने स्लाइटली बिगर थिंग्स? सर पैराग्राफ बिल्कुल मत लिखिए. कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी इंक्यूबेशन सेंटर वाला पैराग्राफ पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता है. इसको आप बुलेट पॉइंट्स में लिखिए, बुलेट पॉइंट्स में 1 2 3 करके या तो. ओके सर. ठीक है सर. सर देखिए, हाँ यहाँ पर ना एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं ब्रीविटी. सुना ना आप लोग ने सर? ब्रीविटी. राइट सर. ब्रीविटी जो टर्म है ना सर, ये एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है. आप किसी चीज को बहुत बड़ा करके नहीं बल्कि बहुत शॉर्ट करके उसका मीनिंग कितने अच्छे से समझा सकते हैं ना. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ब्रीविटी व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है ना सर? तो तीनों जैसे 3 अगर है तो 3 आप बुलेट पॉइंट्स में लिखिए. बुलेट पॉइंट्स में या 1 2 3 के फॉर्म पे जैसे आपको ठीक लगे. लेकिन हाँ, अगर आपने वहां पर तीनों लिखे हैं 1 2 3 तो उसी के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशंस अवेलेबल इन द मार्केट आना चाहिए सर. ठीक है ना? यस सर. और उसी के ही रिस्पेक्ट में आपको व्हाट सॉल्यूशन और टेक्नोलॉजी, व्हाट इज योर सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी दैट विल कम. इट मे हैपन दैट यू आर हैविंग 3 बुलेट पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू स्टार्टअप्स, लेकिन आप सिर्फ उसको मार्केट में सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन अवेलेबल है, एक सॉल्यूशन अवेलेबल है या कोई अवेलेबल नहीं है, तो आप लिख सकते हो कि मार्केट प्रेजेंटली मार्केट इज नॉट कैटरिंग दीस सॉल्यूशंस. और फिर व्हाट इज योर सॉल्यूशन, अगर आप एक ही टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है ऑल दीज 3, तो यू कैन राइट डाउन ओनली वन सॉल्यूशन और टेक्नोलॉजी. ठीक है ना? आई होप दिस इज क्लियर. कुछ पूछना है आप लोगों को इसमें? सर इट हैज टू बी इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस और रेलेवेंस, ऐसा तो कुछ नहीं है ना सर? जो 3 पॉइंट्स प्रॉब्लम्स दे रहे हैं. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. बस इतना ध्यान रखना, जो मैंने यहाँ लाइन लिखी है प्लीज इसको एक बार दोबारा पढ़ो. ठीक है ना? प्रिया देखो मैंने क्या लिखा है. व्हाट आर द टॉप प्रॉब्लम्स यू आर ट्राइंग टू सॉल्व फॉर योर कस्टमर्स. ठीक है ना? राइट. व्हाट आर द टॉप. मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी मार्केट में उसको सॉल्व कैसे करोगे? ठीक है. और अगर आप इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तब देखो कि वो जो प्रॉब्लम आपके सामने बताई जा रही है, कस्टमर्स रियली वो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि नहीं फेस करते हैं. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ओला और उबर मार्केट में आई. क्यों आई? क्योंकि लोगों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम थी. ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है. अब लोगों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम थी, तो क्या उससे पहले लोकल टैक्सीज या ऑनलाइन टैक्सीज अवेलेबल नहीं थी? वो अवेलेबल थी. तो फिर ओला उबर ने अपनी कौन सी गैप बनाई, किस गैप को फुलफिल किया? उन्होंने ये नहीं बताया. उन्होंने ये बताया कि आप इसमें रियल टाइम आपका ट्रैकिंग कर सकते हो कि आपकी गाड़ी कहाँ पर है, कहाँ नहीं. रियल टाइम आप बुकिंग कर सकते हो. उससे पहले जो भी हम मेगा कैब आती थी, आपकी मेरू कैब आती थी. पहले तो मेगा कैब, मेरू कैब, आपने नाम शायद सुना होगा, इजी कैब वगैरह का. इन लोगों की बुकिंग पहले तो एक दिन पहले अलाउड थी, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया कि बुकिंग 1 आवर की कर दी. लेकिन 1 आवर की जब बुकिंग की तब भी जो सॉफ्टवेयर का पार्ट था वो सिर्फ कंपनी के पास था, वो कस्टमर के पास नहीं था. तो जब ओला उबर अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के आई तो उन्होंने सबसे पहले उनकी उसमें टेक्नोलॉजी में नई टेक्नोलॉजी क्या थी? नई टेक्नोलॉजी ये थी कि वो रियल सिस्टम से मैप को जोड़ पा रहे थे आपके सॉफ्टवेयर में. ठीक है ना? ओला और उबर अगर आप दोनों को देखोगे तो उबर ने तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रखा था गूगल मैप के साथ, लेकिन ओला का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं था. ओला उसको पे कर रहा था उसकी यूजेस के हिसाब से. तो प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि एक्चुअली जो कस्टमर्स हैं और जो फ्यूचर कस्टमर्स हैं, दे वर फेसिंग एट दैट टाइम प्रॉब्लम कि उनकी टैक्सी बुक होने के बाद भी देयर वाज नॉट गारंटी और नॉट श्योरिटी कि टैक्सी आएगी कि नहीं आएगी.
क्योंकि वो रियल ट्रैकिंग नहीं कर पा रहे थे उनकी टैक्सी कहाँ पर है, दे वर नॉट एबल टू टॉक टू द ड्राइवर्स डायरेक्टली। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब कोई इस तरह की कंपनी आती है, तो आप देखो इन दोनों चीजों को सॉल्व, तीनों चीजों को आप ध्यान से देखो। प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू योर स्टार्टअप, इसको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। सॉल्यूशंस अवेलेबल इन द मार्केट, लोकल ट्रांसपोर्टेशन है जहाँ पे आप ऑफलाइन बुकिंग करते हो, या जो मैंने अभी आपको बताया ऑनलाइन है लेकिन वो इंटरनेट बेस्ड या वॉइस ओवर ऑनलाइन नहीं है, और तो उसको आप अच्छे से लिख सकते हो। फिर आपका व्हाट इज योर सोल्यूशन, तो सोल्यूशन व्हेन यू विल डिस्क्राइब योर ऐप, वो अपने आप में पूरी ऐप सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। तो इस तरीके की मैंने पिच डेक देखी है हाई लेवल पे कि लोग उसको किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से शो करते हैं। क्लियर मैसेज शुड कम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर टू द क्राउड और टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है ये। हाँ बेटी, कोई और क्वेश्चन इसमें? So if we are having more than one solution to a problem, so we should just mention all the solution or just one from like the best from the rest? नहीं बेटे, अगर आपके पास कुछ भी ऐसे सोल्यूशन है जो कि बाकी लोगों के लिए वो बड़ी चीज है, तो जरूर उसको लिखो यहाँ पे, ठीक है ना? Okay, sir. अच्छा निधि, आपने पूछा ही है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये सब चीजें ना अभी तो हम लोग का बस एक छोटा सा एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है तो आप बना करके सबमिट कर दो। लेकिन रियल टाइम में जब आप उसको बनाते हो ना, तो हर इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को शो नहीं किया जाता है कि जब तक कि आपके बीच में टर्म साइन नहीं होते हैं, राइट? तो आपको Okay, sir. कितनी इंफॉर्मेशन शो करनी है, कितनी इंफॉर्मेशन शो नहीं करनी है, ये डिपेंड करता है, आपका मेंटर आपको ठीक से गाइड करेगा। क्योंकि सर मे बी ऐसा हो सकता है कि वो हमें मना कर दे लेकिन वो हमारे आइडियाज कॉपी ले ले, राइट। ना? तो Okay. अभी तो चलो एक कंपटीशन है, अभी तो हमारी इंफॉर्मेशन कहीं नहीं जा रही है, लेकिन जब भी आप लोग उसको इन्वेस्टर्स के सामने पिच करते हो ना, तो बी केयरफुल, बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की बात है। जब मैंने सेशन लिया था तो उसमें 3 लाइनें लिखी थी, आपको याद है कि मैं दोबारा से शो करूं? मैंने उसमें ये चीज आपको बताई थी कि आप क्या कंटेंट्स आपको शो करने, क्या नहीं, ये एक आर्ट है, राइट? चलो Yes, sir. इसमें कोई और क्वेश्चन है कि मैं अब आगे चलूं? अब यहाँ पर ये आता है कि करंट स्टेज क्या है। देखिए आप लोगों के टाइम पर जो स्टेज है वो या तो आइडिया स्टेज होगी, कभी कुछ भी रेडी नहीं है। इफ इट इज आइडिया स्टेज, प्लीज राइट इट आइडिया स्टेज, डोंट हेजिटेट इन राइटिंग आइडिया स्टेज, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 90% लोगों का आइडिया स्टेज होगा। अगर किसी का पीओसी या पीओवी स्टेज पर है, देन यू कैन राइट पीओसी और पीओवी, राइट? पीओसी और पीओवी का मीनिंग क्या है वो समझ लीजिए। पीओसी का फुल फॉर्म है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, और पीओवी का फुल फॉर्म है प्रूफ ऑफ वैल्यू। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जो आपका आइडिया है वो कन्वर्ट हो पाएगा प्रोटोटाइप में कि नहीं हो पाएगा। और पीओवी का मतलब क्या है कि जब वो आपका आइडिया प्रोटोटाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सोसाइटी को कुछ वैल्यू देगा कि नहीं देगा। आई होप माय बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स आर क्लियर। थर्ड पॉइंट आता है प्रोटोटाइप। आपने प्रोटोटाइप रेडी कर लिया है कि नहीं? जब प्रोटोटाइप बनता है तो उसकी वैसी शेप नहीं होती है जिस शेप को आप डायरेक्टली आप मार्केट में आप लॉन्च कर सको। उसके लिए हमें मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना पड़ता है जो हर तरीके से पीओसी और पीओवी को फुलफिल करता है। तो इफ दैट स्टेज इज रीच, देन इट इज नोन एज व्हाट, पीओवी। अगर प्रोडक्ट रिफाइनमेंट कर करके आपने एक ऐसी जगह पर आ गए कि आपका प्रोडक्ट रेडी है, देन स्टेज विल बी रेडी प्रोडक्ट। अभी हम लोग सिर्फ 1 2 3 4 5 की बात करें, बाकी सबको बिल्कुल ध्यान मत दीजिए क्योंकि आपका प्रोडक्ट अभी वहां पर नहीं है। एनी डाउट फ्रॉम 1 to 5? Excuse me, sir. सर हाँ बेटे बताइए। सर जैसे हमारा सिर्फ आइडिया स्टेज है, तो हम सिर्फ आइडिया स्टेज तक लिख सकते हैं या हमको थोड़ा आगे मतलब नहीं, point अगर वाले में आपका होएगा? आइडिया स्टेज है, अगर अगर इमेजिन आपका कर रहे हैं या नहीं बेटे, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अगर आपका आइडिया स्टेज है तो यहाँ पर लिखो स्टार्टअप स्टेज और नीचे लिखो आइडिया, बाकी सब डिलीट कर दो। ओके। सर हाँ अगर मतलब अगर सर लाइक हम माइंड में है प्रोटोटाइप कैसा बनना है, तो तो उसमें ऐसे लिख सकते हो कि आइडिया स्टेज हैज बीन तो क्रॉस्ड। फिर उसको लिख सकते
हाँ, तो आप इसमें लिख सकते हो आइडिया हैज बीन क्रॉस्ड एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रोटोटाइप। ये इस तरह से लाइन लिखोगे, बाकी सबको डिलीट करोगे। ठीक है ना? ओके ओके, हाँ, थैंक यू और सर। हाँ, नीचे लिखा हाँ हुआ है जी कि अगर हाइब्रिड कंडीशन है, आप नीचे पढ़ो, मैं इसको हटाता हूँ फिर आप देख पाओगे। नीचे देखो, अगर हाइब्रिड पोजीशनिंग है यस सर यस तो आप सर। लिख सकते हो। देखो कई जगह ऐसा होता है कि डेथ वैली भी होती है लेकिन रेवेन्यू जनरेटिंग भी होता है। वन प्रोडक्ट सेटल्ड होता है, साथ साथ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का काम होता है। तो हाइब्रिड मॉडल लिखा जा सकता है, बट इन योर केस इट इज नॉट एप्लीकेबल। प्लीज रिफाइन योर सेल्फ विद इन 1 to 5। यस सर। ओके, थैंक यू सर। शालिनी पूछ रही है कि कैन यू एक्सप्लेन डेथ वैली और वैली कोऑर्डिनेट्स। शालिनी, आर यू स्टूडेंट ऑफ IGDTW? You must be having some experience, that is why you might be asking. लेकिन शालिनी, इसके बारे में ना आप मुझे कभी कॉल कर लीजिएगा या मैं कभी आपके साथ बैठ करके बता दूंगा, क्योंकि डेथ वैली को समझने के लिए पूरा 1 डे का सेशन चाहिए। लेकिन डेथ वैली का मतलब बस यही है कि इट इज लिंक्ड विद द बर्निंग रेट ऑफ इन्वेस्टर। बर्निंग रेट ऑफ इन्वेस्टर ये dy/dx से सिंपली शो होता है, क्योंकि डेथ वैली है इसलिए -dy/dx से शो होता है। जहां पर जो y है वो ये बताता है कि रुपीस के टर्म पे उसको कितना नुकसान हो रहा है, और t जो होता है वो टाइम होता है। तो जब हम बर्न रेट निकालते हैं तो उसकी अलग अलग उसके पैरामीटर्स होते हैं। दिस डेथ वैली इज आल्सो नोन एज हॉकी स्टिक। कई बार ये भी देखने में आता है कि किसी बिजनेस में एक डेथ वैली के बाद दूसरी डेथ वैली आती है, दूसरी के बाद तीसरी डेथ वैली आती है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम इन्वेस्टर्स को बताना चाहते हैं कि आप जो पैसा दे रहे हो वो बात ठीक है, क्या पैसा दे रहे हो, बट बी प्रिपेयर योर सेल्फ कि फॉर 2 years और फॉर 1 year इट विल बी इन लॉस। वो 1 year 2 year कहाँ से आया? दैट हैज कम फ्रॉम डेथ वैली, राइट? आई विल सजेस्ट यू टू पार्टिसिपेट इन सम अदर सेमिनार और कॉन्फ्रेंस विच एक्चुअली डील विथ डेथ वैली। हम लोग कभी ऐसा करेंगे तो वी विल बी इन्फॉर्मिंग यू। यू कैन ज्वाइन आवर फेसबुक पेज, तो उसमें आप लोग को और क्लियरली मैं समझा दूंगा ये, राइट? वैसे हो सकता है मेरा डेथ वैली का एक सेशन अभी दिसंबर के मंथ में ही होगा, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, दैट इज अबाउट द डेथ वैली के टर्म से कभी नहीं होता है। ये आता है कि बर्निंग रेट के नाम से मिलेगा आपको, बर्निंग रेट विथ इन्वेस्टर्स। चलिए, कोई और डाउट बेटे इसमें? इसमें कोई और डाउट अभी कि मैं आगे चलूं? नेक्स्ट में आ जाता हूँ। नेक्स्ट जो है ना, ये है कि मतलब यू शो टू योर इन्वेस्टर दैट व्हाट इज यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। और ये तो आपने टर्म सुना होगा ना, यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, और यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। ये सुना होगा आप लोगों ने टर्म यूएसपी, राइट? यूएसपी ये शो करता है कि हाउ यू आर डिफरेंट from your competitors। Yeah, USP shows that how you are different from your competitors। And wow का मतलब simple wow है। You say ना wow, what is the scenery? Wow, what is the environment? Wow। तो wow means it has not been seen before by anyone। तो wow factor का मतलब है कि totally unique or something which was not expected by investors, or maybe they are not, these things are not expected by customers। तो हम बोलते हैं wow। So if you are having any USP or wow factor, you can write it over here। Competitive advantage, and competitive advantage का मतलब ये है कि what points give you an advantage over your competitors। और लास्ट में अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। अगर आपको अभी तक उस बिजनेस आइडिया से लिंक कोई भी अवार्ड या रिकॉग्निशन मिला है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हाँ, एनी क्वेश्चन इन दिस स्लाइड? सर इसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस गेन, मेंटेन, एक्सप्लॉइट, सर थोड़ा एक बार बता देंगे प्लीज? सर देखिए, मैंने एक्चुअली में आप लोगों के लेवल का नहीं है, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहे हैं? विपिन जी पूछ रहे हैं। विपिन पूछ रहा हूँ सर। विपिन, मैं बता तो जरूर दे रहा हूँ, लेकिन प्लीज इसको ये मत समझिएगा कि मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूँ, ठीक है ना? मैं आपको ये चीज इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत कुछ बिलीव करता हूँ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में। लेकिन अब चांस की बात है कि ये हमारे पोर्टल जी ने सबसे पहले, पोर्टल का नाम सुना है ना सर आप लोगों ने? यस सर, आप लोगों ने पोर्टल्स 4 और 5 स्टोरी, राइट। पोर्टर जी ने, सर पोर्टर जी मेरे फेवरेट मैनेजमेंट थिंकर हैं।
और उन्होंने 4 थ्योरीज मैनेजमेंट की दी हैं और चारों की चारों सर बेमिसाल है, उससे अच्छी थ्योरीज मैं लाइफ में कोई नहीं देखी। पोर्टल जी की जो थ्योरीज हैं उनमें सबसे पहली थ्योरी आती है वो इंडस्ट्री से लिंक्ड है, जिसको हम इंडस्ट्री एनालिसिस बोलते हैं, जिसकी आप बात करो 5 फोर्सेस इंडस्ट्री मॉडल, यस सर। राइट। दूसरी आती है उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेटजी एंड कॉम्पिटिटर्स एडवांटेज, ये भी पोर्टल ने दी थी। इसके अलावा आती है वैल्यू चेन एनालिसिस, ये भी पोर्टल की दी हुई है। और एक आती है डायमंड एनालिसिस, ये भी पोर्टल की दी हुई है। पोर्टल ने ये चारों जो हमें जो थ्योरीज दी हैं ये अलग अलग लेवल पर है। जैसे कि किसी कंपनी के अंदर का जो मामला होता है उसको हम सॉल्व करते हैं वैल्यू चेन से, राइट। किसी कंपनी के बाहर का जो मामला होता है लेकिन कंट्री के अंदर अंदर, उसको हम सॉल्व करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस से, जिसके बारे में अभी आपने बताया। अब एक कंपनी का दूसरे कंपनी के साथ जो रिलेशन होते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस से। और डायमंड एनालिसिस में जब हम कंट्री के बाहर जाकर के हम कंट्री के साथ बार्गेन करते हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी ने कंट्री के साथ बार्गेन किया, जहाँ पे कंट्री भी एक स्टेक होल्डर बन जाती है आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, इसको हम डायमंड मॉडल से सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने एमटेक किया होगा या बीटेक किया होगा तो आई एम 100% श्योर उन्होंने पोर्टल की चारों थ्योरीज के बारे में पढ़ा होगा। हाँ, यहाँ पर जो मतलब है ये मैं बता देता हूँ, ये तीनों की तीनों टर्म्स जो मैंने लिए हैं, गेन, मेंटेन एंड एक्सप्लॉइट, ये पोर्टल की कॉम्पिटिटिव एनालिसिस से ही लिए हैं, कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस। कॉम्पिटिटर एनालिसिस के नाम से 1980 में ईडब्ल्यू पोर्टल ने बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस। इस बुक के आने के बाद बहुत सारे मैनेजमेंट थिंकर ने उनका अपोजिशन भी किया था और कई सारे लोगों का, इंक्लूडिंग जो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो हेड माने जाते थे आईगॉड जी और बहुत सारे लोगों ने इनका अपोजिशन भी किया था, ये थ्योरी बहुत ज्यादा सही नहीं है। लेकिन टाइम आने पर धीरे धीरे लोगों को फील हुआ कि पोर्टल की थ्योरी एक अच्छी थ्योरी है। तो कॉम्पिटिटर एडवांटेज लेते समय ये तीनों टर्म्स को आप समझिए तो आपको समझ में आएगा। गेन, मेंटेन एंड एक्सप्लॉइट, आप मेरे पहले पॉइंट से 100% एग्री करोगे, मुझे पता है गेन, कॉम्पिटिटर्स एडवांटेज गेन करना। आप मेरे दूसरे पॉइंट से भी मेंटेन से भी आप एग्री करोगे, जिसको हम बोलते हैं मेंटेन, मतलब कि कॉम्पिटिटर्स एडवांटेज को मेंटेन करके आप किस तरीके से उसको ज्यादा से ज्यादा कैश काउ का पीरियड बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस में प्रॉफिट लेकर के आइए। मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरे थर्ड पॉइंट से एग्री नहीं करोगे, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लॉइट, क्योंकि ये कहीं से सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो लेकिन पोर्टल जी ये कहते हैं और मैंने इस बात को देखा है कि जो भी बड़े-बड़े बिजनेसमैन ने आज नाम कमाया है, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, उन्होंने गेन और मेंटेन करके उतने पैसे नहीं कमाए हैं, जितने पैसे उन्होंने एक्सप्लॉइट करके कमाए। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, ऐसे समझिए, केदारनाथ में बहुत पहले फ्लड आया था, तो वहाँ पे जितने भी शॉप वाले थे, कई सारे शॉप वालों की दुकानें खराब हो गई। दुकानों के अंदर पानी घुस गया। लेकिन कुछ ऐसे वाले थे जिन्होंने वहां पर आकर के अपना सामान बेचना शुरू किया। तो जिनके दिमाग में ये बात आई कि वो वहां पर बैठ करके अपना सामान बेचेंगे, उन्होंने बाकी दुकान वालों के कंपेयर में, यानी कि बाकी वेंडर्स के कंपेयर में, यानी बाकी बाकी सेलर के कंपेयर में इस एडवांटेज को गेन किया। आर यू ऑल एग्रीइंग विद दिस? इसको गेन किया। ये बात क्लियर है? यस सर। अब आप ये देखो, सबकी सप्लाई चेन टूट गई, लेकिन कोई एक ऐसा शॉपकीपर हो जिसकी सप्लाई चेन किसी तरीके से नहीं टूटी, इसको हम बोलेंगे कि उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को उसने क्या किया, मेंटेन किया। एग्रीइंग विद दिस? यस सर। अब सर मैं एक्सप्लॉइट बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए शायद आप एग्री नहीं करोगे, लेकिन बस सुन लो सर, ये बस एक एग्जाम्पल के रूप में आप सुन लो। मैंने एक पार्ले जी का बिस्किट जो कि 5 रुपए का बिक रहा था, उसको 10 रुपए का बेचना शुरू कर दिया, या मैंने 50 रुपए का बेचना शुरू कर दिया। मैंने जब इस बात को देखा कि आप 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया, तो मैंने उसकी कीमत बढ़ा के 200 रुपए कर दी। और जब मैं देखा कि आपका बच्चा रो रहा है, शायद उसे 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तो मैंने उसकी कीमत बढ़ा के 1000 रुपए कर दी। ये है एक्सप्लॉइट करना। ठीक है सर? यस सर। तो इन तीनों चीजों को बस आप समझ लो। ये पोर्टल ने कहा था, जब पोर्टल ने इसके बारे में लिखा तो बहुत सारे लोगों ने उसका अपोजिशन किया। बड़े-बड़े मैनेजमेंट थिंकर अपनी नई-नई थ्योरीज देते हैं, प्लीज पहले की बुक्स भी पढ़ लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप चाहे जिस कंपनी का एग्जांपल लीजिए सर, सॉरी टू से एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, आप बड़ी-बड़ी इंडिया के बिजनेसमैन की बात कीजिए, ये लोगों ने गेन भी किया है, इन्होंने मेंटेन भी किया है और उन्होंने एक्सप्लॉइट भी किया है। ठीक है? अगर हम इंडिविजुअली कई लोगों की केस स्टडीज देखेंगे तो हम इसको देखेंगे और इसको फील भी करेंगे। ठीक है सर, आई होप इट इज क्लियर सर। यस सर, सॉरी मैं वो म्यूट पे था सर, सॉरी। ओके ओके, नहीं ठीक है सर। यस। इसलिए लेकिन क्योंकि इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू का आप शो करते हो, जैसे कि मैं आपको बात बताना चाहता हूँ
ऑनलाइन बिजनेस में आप लोगों ने बायजू वगैरह का नाम सुना होगा, सबने सुना है ना। ये लोग सिर्फ गेन नहीं करते हैं, ये लोग सिर्फ मेंटेन नहीं करते हैं, ये एक्सप्लॉइट भी करते हैं। इन्वेस्टर्स को जब आप ये बात बताते हैं ना कि आदमी मर के हमारा सामान लेगा, तो इन्वेस्टर्स बहुत बड़े खुश होते हैं। आप उनकी आंखों की चमक देखा करो, इन्वेस्टर्स बड़े खुश होते हैं कि हाँ ऐसी पोजीशन आ जाए कि सब कुछ बंद हो जाए, बस आप ही का बिजनेस चले जिसमें हम पैसे लगा रहे हैं। ठीक है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि रिलायंस की थ्योरी एक एप्लीकेशन आ रही है, और ये बहुत हाई लेवल पर आ रही है, जो रिलायंस की कंपनीज जियो के साथ टाइप करेगी, और ये आपके घरों तक छोटे मोटे सामान भी घरों तक पहुंच जाएगी। आप लोगों ने इसके नाम सुना होगा, कई सारी कंट्री सिटीज में ये लॉन्च हो चुकी है, जिसको हम जियो मार्ट कहते हैं। आपने सुना है इसको? Yes, यस sir. सर। ये गेन भी है, ये मेंटेन भी है, और ट्रस्ट में ये एक्सप्लॉइट भी है। यहाँ पे कौन एक्सप्लॉइट हो रहा है? Customers. नहीं, लोकल शॉपकीपर भी हो रहे हैं, मेनली लोकल Yes. शॉपकीपर। कोई ना कोई कैटेगरी एक्सप्लॉइट हो रही है, अब आपका बिजनेस चल रहा है बेटे आगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कितने सारे स्टार्टअप्स मार्केट में आ रहे हैं, और जब आपको जान के हैरानी होगी कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसे क्यों लगा रहे हैं एआई में। उनको लगता है कि वर्किंग कॉस्ट जो होगी वो डाउन हो जाएगी। वर्किंग कॉस्ट क्यों डाउन हो जाएगी? क्योंकि आदमियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आदमियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक क्लॉज ठीक है, लेकिन कोई ये सोच रहा है कि इतने सारे लोग, इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, इतने सारे लोग जाएंगे कहाँ पे? तो दोनों ही चीजें हैं, मतलब बट यू वांट टू इंक्रीज योर बिजनेस, दैट इज व्हाई यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, यू आर ओनली ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट समवन, मे बी डायरेक्टली मे बी इनडायरेक्टली। तो ये पॉइंट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। जब मैं कई बार सीनियर लोगों के बीच में बैठा होता हूँ, तो हमेशा ये पॉइंट जरूर आता है कि किसका पैसा आपके पास आ रहा है, क्योंकि आज की डेट में बेटे जो भी नया बिजनेस आ रहा है वो किसी और का पैसा था, लेकिन वो रूप चेंज करके आपके पास आ रहा है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। Yes, sir. Just like same thing happened when Rajiv Gandhi brought computer in India for first time. तब राइट। भी यही था कि exploit होगा बहुत ज्यादा. हाँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं होगा बेटे, वो Yes, sir. उस समय भी यही थ्योरी थी। वैसे ये संजय गांधी लेकर के आए थे कंप्यूटर इंडिया Yes, sir. में। Yes, sir. Sanjay हाँ Gandhi. Yes, sorry, हाँ, sir. लेकिन हाँ नहीं कोई बात नहीं, लेकिन बेटे ये चीज जो है ना, ये उतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि कंप्यूटर में ऑपरेट करने के लिए कोई चीजें थी। लेकिन हाँ, अब जो टाइम आ रहा है, आपको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1 आ गई है, 2 पे हम लोग चल रहे हैं, आने वाले टाइम पे पता नहीं कहाँ तक आने वाली है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कोविड भी आया है, कई बार चीजें हमारे सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन हाँ लोगों की परचेजिंग पावर डाउन हुई है, लोगों की कंजम्पशन बास्केट भी डाउन हुई है। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें आइडिया नहीं लगता है। घरों की कीमत और कई सारी लग्जूरियस चीजों की कीमत जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, अब आकर के स्टैग्नेंट हो गई है, रुक गई है। इसलिए क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कस्टमर्स की बाइंग कैपेसिटी क्या है। पिछले 10 सालों में इन पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, वो सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज इंडिया में आई हैं। एफडीआई के फॉर्म में आई हो, या एफआईआई के फॉर्म पे आई हो, या एफपीआई के फॉर्म पर आई हो। उनके आने के पीछे जो मेजर रीजन है, वो मेजर रीजन हमेशा ये रहा है कि इंडिया के लोगों के पास पैसा है, वो पैसा खर्च कर सकते हैं। आप ट्रस्ट मी, आप मेरी बात मानिए, यूरोप में जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, या जो भी जितने भी लोगों को मैं यूएस में जानता हूँ, उनके पास एट द एंड ऑफ द वीक बहुत ज्यादा पैसे नहीं बचते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हैबिट में ही नहीं है। हमारी इंडिया की हैबिट में है कि हम पैसे सेव करते हैं, और हम पैसे सेव करते हैं आने वाले किसी चीज को लेकर के देने के लिए। आपका बच्चा जिद करेगा उसको आईपैड खरीदना 40,000 रुपीज का, तो आप कोशिश करोगे कि उसको दे दे, लेकर के दे दे। लेकिन बाहर की कंट्रीज में ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं है। अर्न भी करते हैं, लेकिन उतना एंजॉय करने में खर्च भी करते हैं, फोटोग्राफ्स में खर्च करते हैं, फेसबुक में डालने के लिए खर्च करते हैं, बहुत सारे अटायर्स और कॉस्ट्यूम्स खरीदने में पैसे खर्च करते हैं, खाने पीने में खर्च करते हैं, ड्रिंक्स उनकी रोज की हैबिट होती है। तो ये जो चीजें हैं वो हमारे इंडिया में नहीं है। बहुत पहले एक एनालिसिस आई थी जब यूटीआई स्कैम हुआ था, शायद विपिन जी जानते होंगे, मैं शायद 2008 की बात कर रहा हूँ। जब यूटीआई स्पैम आया था, तो बाहर की जो कंट्रीज थी, जो इंडिया, जिनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट, जब इंडिया में आई तो वहाँ के एक आदमी ने एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट सुन के मुझे अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा। अच्छा ये था कि उन्होंने ये कहा था, इंडिया में कोई भी लेडी हो, चाहे वो झाड़ू लगाने वाली आपकी मेड क्यों ना हो, उसके घर में भी आपको 4 तोले सोना मिल जाएगा। तो व्हाट इज दिस? ये हमारी हैबिट है, ये हमारी
सेव करने की हैबिट है, ये हमारी एक चाहत होती है कि हम कुछ ना कुछ अर्न करें, कुछ बचा लें। ये एक चीज है जो आपकी पेइंग कैपेसिटी को, जो आपकी बढ़ाता है। और क्योंकि आपकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है, इसलिए बाहर के लोग आपके पास आकर के बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने से आप पैसे, आपके पास पैसे हैं खर्च करने के लिए। पहले एक टाइम ऐसा होता था कि जब इंडिया में लोग जाते थे, मॉल वगैरह आते थे, घूम के आ जाते थे, पैसे खर्च नहीं करते थे। पिछले 10 सालों में मैंने देखा है कई सारे लोगों ने सेविंग से हट करके कुछ ना कुछ पैसे बाहर मार्केट में आके खर्च करना स्टार्ट किया है। तो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको हमें समझना पड़ेगा। हम लोग जब भी हम लोग टेस्ट एनालिसिस करते हैं, PEST एनालिसिस, ई का जो पैरामीटर है विच इज नोन एज इकोनॉमिकल पैरामीटर, इसमें जो आपकी पेइंग कैपेसिटी है, आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी, इट काउंट्स अ लॉट, राइट? Any question in this particular slide? यस सर। सर ये जो अवार्ड और रिकॉग्निशन रिसीव्ड है, ये ऑप्शनल है या बेटे जरूरी है? सब कुछ ऑप्शनल है पिंकी, मैंने पहले ही बताया था। ये भी जरूरी नहीं है कि आप सारी की सारी स्लाइड्स को शो कीजिए। आपको कोई स्लाइड उड़ानी हो तो उड़ा दीजिए। मैंने उसमें मिनिमम कितनी स्लाइड्स लिखा है? 6 to 10 लिखा है ना शायद? काइंड सर। नहीं, आपके असाइनमेंट में कितना है कोई चेक कर सके? डॉक्टर प्रिया कितना है उसमें? सॉरी सर, मेरे को चेक करना पड़ेगा। मैंने सारे ही जितना Sir, मिल it's सका 10 to इंफॉर्मेशन करा है। 15. 10 to Sir, 15 है? it's 10 to 15 slides. Yes, हाँ, तो sir. आप 10 स्लाइड्स बना लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना बेटे? ओके सर, आप थैंक चाहो यू तो इसमें से कुछ चीजें रिमूव कर दो। Sir, आप like हम सिर्फ USP and wow factor like है राइट, हमारा, तो हम सिर्फ उसको ही लिखे ना, like बस क्योंकि बस competitive advantage. यस। Yes, और sir. अगर Okay, सिर्फ sir. यूएसपी है तो सिर्फ यूएसपी लिखो, अगर वो भी नहीं है तो उड़ा दो स्लाइड को। Okay, okay, sir. ओके, थैंक यू सर। ओके बेटे। Sir, how is USP and wow factor different? Like wow हाँ, factor and unique selling price somewhat mean the same. नहीं ऐसा नहीं है। कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? Sir, me, Dhriti. धृति देखो ध्यान से सुनो, यूएसपी का मतलब ये है जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है। ठीक है Okay, ना? sir. ऐसा हो सकता है कि वो कहीं और हो, किसी और मार्केट में हो या किसी और इंडस्ट्री में यूज हो रहा हो। वाव फैक्टर का मतलब ये है कि जो अभी तक किसी ने बहुत ज्यादा देखा ही नहीं। Achha, sir, my idea is not that unique. Matlab, it has been very common in the West, but it's not that prominent in India. So to establish that idea in India, so sir, I've written the competitive advantage, but I've not, included the wow factor or USP because because it's very common in the West. Right, So but if it is very common now, but then too, if your present competitors are not having that in their business, then you can put it in USP also. okay, sir. Thank you, sir. So instead of putting the wow factor, I'll put USP. USP, right? Okay, sir. Thank you so much. See, in this particular slide, please don't go to TAM, SAM or SOM because it could be somewhat at higher level. But for your meaning, it is only the first 3 points. Number 1, for whom are you creating value for? Number 2, what are the market size? And number 3, what is the value to the customer? Value to the customer is the same as proof of value. So this customer segmentation part and market size may you can write both of miss all of these 3. और ये डेटा आपको मिलेगा कहाँ से? दिस डेटा वेरी वेल यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम द सेकेंडरी डेटा अवेलेबल इन गूगल। आप सर्च करो, आप ये डेटा उठा करके डाल दो। बट द ओनली थिंग इज दिस दैट फ्रॉम वेयर यू आर फेचिंग दिस डेटा दैट शुड कम ओवर हियर। फ्रॉम वेयर यू आर फेचिंग दिस डेटा, कौन सी रिपोर्ट में था, किस वेबसाइट से लिया है, व्हाटएवर। एनी क्वेश्चन इन दिस स्लाइड? No, sir. तो मैं आगे चलूं फिर इसमें? Yes, sir. चलिए, ये आता है कि ग्रोथ चैनल क्या होगा। ये बहुत कॉमन एक मतलब एक्सरसाइज है विच वी जनरली कंडक्ट, लेकिन ये तभी कंडक्ट होता है जब आपका मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए। तो इफ इट इज बिजनेस एट आइडिया स्टेज देन प्लीज रिमूव दिस स्लाइड। अगर ये बिजनेस आपका आइडिया स्टेज पर है या पीओसी पर है, पीओवी पर है या इवन प्रोटोटाइप में है, तो यू कैन रिमूव योर दिस स्लाइड। मैं लेकिन इसका आपको मतलब बता देता हूँ, शायद मैंने आप लोगों को कराया भी होगा।
अवेयरनेस मतलब हाउ विल यू गिव अवेयरनेस अबाउट योर प्रोडक्ट इन द सोसाइटी और इन द मार्केट. क्लियर? एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब क्या है कि हाउ विल यू कलेक्ट डेटा ऑफ योर फ्यूचर कस्टमर्स और लाइट हाउस कस्टमर्स. Activation, activation says that how will you convert ultimately your customers. Convert मतलब आप वो पे कर दे आपको. Retention, how will you retain them, how will you remain them with your business or with your product. Referral, how will you make them as a reference, reference to others. Reference to others मतलब जिसको हम बोलते हैं कि evangelism marketing. Evangelism marketing में we talk about marketing through mouth. So it comes under referral. And revenue मतलब ultimately how it is going to give you revenue. Revenue means return on investment, which is linked with return of investment. Sorry. तो ये जो ट्रिपल आर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हमारी यूनिवर्सिटी की कई सारी बीबीए की लड़कियां गर्ल्स होंगी जो कि इसको अटेंड कर रही हैं इस प्रोग्राम को. बेटे मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने मार्केटिंग में जाना है तो ट्रिपल आर में माहिर बन जाओ. नंबर 1 बन जाओ ट्रिपल आर में. आप किसी भी कंपनी को अपना इंटरव्यू दे रहे हो और अगर आपने बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रखी है ट्रिपल आर पे, तो यू विल बी डेफिनेटली इन अ सेपरेट काइंड ऑफ लाइन. मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसी एक्सरसाइज देखी जो मैंने जनरली सिर्फ आईएम्स और बहुत हायर लेवल के एजुकेशन लेवल पर देखा है, जो लोगों ने केस स्टडी सॉल्व की है ट्रिपल आर पे. ऑल्दो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी ओल्ड, नॉट न्यू, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री चेंज हो रही है, नया बिजनेस आ रहा है, तो ट्रिपल आर की यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस अलग से हमेशा रहती है. इसके अलावा सेल्स फनल इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच आल्सो कम्स इन मार्केटिंग, और दोनों लिंक्ड हैं. सेल्स फनल इज वेरी मच लिंक्ड विद दिस ट्रिपल आर कॉन्सेप्ट. ट्रिपल आर का जो कॉन्सेप्ट है, इट कम्स अंडर ग्रोथ हैकिंग स्ट्रेटेजी. ठीक है ना. और जो आदमी इसका प्रैक्टिस करता है किसी कंपनी में, उसको ग्रोथ हैकर बोलते हैं, ग्रोथ हैकर. तो हर कंपनी में आपको ग्रोथ हैकर मिल जाएंगे. जितनी भी एफएमसीजी की कंपनीज है वहां पर आपको 100% ग्रोथ हैकर मिलेंगे. और ग्रोथ हैकर का काम क्या होता है? सिर्फ इन्हीं 6 चीजों पर ध्यान रखना. और इनकी मैट्रिसेस बनाते रहते हैं. एक्विजिशन डिवाइड बाय अवेयरनेस, हर साल का बनाओ, हर मंथ का बनाओ. Activation divided by awareness, referral divided by activation, opposite also, activation divided by revenue. So many matrices they make. वैसे तो मार्केट में और कई सारे सॉफ्टवेयर में और सैप वगैरह में ये ऑटोमेटिकली क्रिएट किए जा सकते हैं विद थोड़े से स्लाइड चेंजेस करने के बाद, और आपको मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लोग दिख जाएंगे जो इसमें बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं. तो मैंने जितने भी जो भी मेरे थोड़े बहुत फ्रेंड्स इस लाइन में हैं वो उसमें बहुत अच्छे हैं, और मैंने जो सीखा है ये ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट उन्हीं में से किसी से सीखा है. एनी क्वेश्चन इन दिस? चलो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन. हाँ, इसका बस मीनिंग पता होना चाहिए. इसका बस मीनिंग पता होना चाहिए. आई एम रिपीटिंग हियर. नंबर 1 इज केपीआई एंड नंबर 2 इज KRA. केपीआई का मतलब क्या है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मीन्स हाउ विल यू वैलिडेट योर आइडिया. How will you validate your idea? You will definitely validate your idea through some key matrices. Which are those matrices? You will have to decide. ये सारी की सारी key matrices आपको नहीं लिखनी है. You will have to decide that how will you come to know that you are in the right path. ठीक है ना. अगर आपको लगता है you want only first point to be considered, तो consider only first point. If you feel that first and 7 together you will have to consider, then consider first and 7 together. Whatever you want, depending upon your product and industry, you select it and remove all. बाकी सबको हटा दो. लेकिन हाँ, की मैट्रिसेस या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट टू शो हियर. की रिजल्ट एरियाज क्या है? अगेन आई एम सेइंग, इंडिया में आपको की रिजल्ट एरियाज या KRA पे बात करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, लेकिन बाहर के पिच डेक्स में आपको KRA के लिए अलग से एक पूरी स्लाइड दी जाती है. KRA का मतलब क्या है कि आपकी खुद की वीकनेसेस क्या हैं और आपकी टीम की पूरी टीम की वीकनेसेस क्या हैं. उन वीकनेसेस को बताओ और उन वीकनेसेस के ऊपर आप क्या काम कर रहे हो वो आप मुझे बताओ. तो जब आप ये बोलते हो कि ये हमारी वीकनेसेस हैं और इन वीकनेसेस पे हम ये काम कर रहे हैं, तो दैट एंट्री विल कम अंडर की रिजल्ट एरियाज. आई होप ये क्लियर है आपको. एनी क्वेश्चन इन अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ द टर्म? तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे आप लोग आराम से देख लो उसको.
What is required only to understand the meaning of all these terms. सर इसमें जैसे विपिन दिस साइड सर, अगर हमें कोई जैसे अपनी प्रोजेक्टेड कितने रेवेन्यू या कैश फ्लो वगैरह देना है तो वो सर किस में आएगा? नहीं सर, अगर इसमें नहीं आ रहा है तो आप अलग से दिखाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है विपिन जी। ठीक है सर। ठीक है ना, हाँ, ये मैंने बस एक एग्जांपल दिया आपको, देखो ना एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, एक्सेट्रा, सॉरी ओके सर। एक्सेट्रा लिखा है सर, आपको जो ठीक लगता है वो दिखाइए बिल्कुल। ओके सर। हाँ, अगर आपको सिर्फ रिवेन्यू दिखाना है तो रिवेन्यू दिखाइए। देखिए रिवेन्यू का पॉइंट सेकंड पे आ रहा है, एनुअल रिवेन्यू है या क्वार्टर रिवेन्यू है। ओके सर। Any doubt here, बेटे प्लीज? Any doubt in these terms? No sir. Any other? BBA स्टूडेंट बोल देगा तो मुझे लगेगा हाँ क्लियर हो गया। Excuse me, sir. So for the idea stage, we don't need to include KPIs, right? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप छोड़ सकते हो, लेकिन हाँ अगर दिखाना चाहते हो रिवेन्यू के टर्म पे या कम से कम सब्सक्राइब लोगों की टर्म्स में कि कितने लोगों को अट्रैक्ट करोगे तो वो दिखा सकते हो। जैसे कि एक्टिव, हाँ जैसे कि सब्सक्राइब रेट होता है ना, सब्सक्राइब कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया आपके एप्लीकेशन को, राइट? एक उसका आप जनरली शो करना चाहो तो आप शो कर सकते हो। इफ यू वांट टू रिमूव तो आप उसको बिल्कुल रिमूव कर सकते हो। Okay, sir. लेकिन दिशा इस बात को ध्यान रखना, यू आर डूइंग बीबीए ना? Yes, sir. दिशा, इन सब टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, कहीं जाके ये मत बोल देना कि हमें इसका मतलब नहीं पता है, इसलिए आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए इसका हर एक का। Yes, sir. तो किसी का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैं ब्रैकेट में जहां जहां समझ में आ रहा था कि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। ऐसे टिकट साइज, हम यहाँ पे स्टार्टअप वर्ड में टिकट साइज दो जगह यूज करते हैं। फर्स्ट टिकट साइज भी यूज की उसका जो वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ डिस्कस करते हैं टिकट साइज, या अगर मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है या शेयर मार्केट में लिस्ट हो रहा है, तो कितने आईपीओ, अगर आप आईपीओ में लेकर के आ रहे हो तो आपका टिकट साइज कितना होगा, मिनिमम आप कितने का लॉट ले सकते हैं, राइट? ये दोनों बातें तो होगी इन्वेस्टर से रिलेटेड, वो बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम जिस टिकट साइज की बात कर रहे हैं वो ये है, सेल्स गिवन टू अ कस्टमर। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, जैसे हमने ये प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम की 1000 रुपीज फीस है, तो इस प्रोग्राम की टिकट साइज कितनी हुई? 1000, राइट? मैं आगे चलूं कि कोई क्वेश्चन है? Revenue stream, from where the money will come, from where the money will come. Today, from where the money will come, after 6 months or after 2 years, from where the money will come. वो आप यहाँ पे लिखेंगे, link to customer segmentation and value proposition. If you have this link, तो आप लिंक भी कर सकते हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन इसमें? If you are not having any question, I am coming to next. ये स्लाइड आप पूरी तरीके से आप छोड़ दो, इस स्लाइड को आपको नहीं करना। स्लाइड नंबर 13, जस्ट लीव इट, क्योंकि अभी आप लोगों को प्री मनी वैल्यूएशन या फ्यूचर के मेजर प्लान्स क्या है, दिस ओनली इफ यू वांट यू कैन राइट हियर। So Disha is asking, sir, please explain link to customer segmentation and value proposition. अब आप दिशा पूछ रही हो तो मैं बता देता हूँ, उसमें उसी से पूछ लेते हैं ना, अनम्यूट करके। देखो बेटे, लिंक टू कस्टमर सेगमेंटेशन एंड वैल्यू प्रोपोजिशन का क्या मतलब है कि मेनी टाइम्स व्हेन यू मेक प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल, ठीक है ना? जैसे कि आपने, या मान लो कि आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है और कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उन लोगों के लिए जिनकी मंथली इनकम 40,000 या उसके ऊपर है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ दिल्ली के लिए है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कानपुर के लिए है, या दोनों प्रोडक्ट हैं लेकिन मार्केट डिफरेंट, तो दैट इज व्हाट कस्टमर सेगमेंटेशन, ठीक है ना? अब ऐसा हो सकता है कि जो आपकी रिवेन्यू होगा वो फर्स्ट कस्टमर सेगमेंट से ज्यादा आएगा और सेकंड कस्टमर सेगमेंट से कम आएगा।
So that kind of thing you will have to write over here. So revenue streams is this, but yes, you are expecting that men will buy 80% and female or women will buy 20%. तो आप ये चीज लिख सकते हो यहाँ पे, आपका customer segmentation is coming from two different customer segmentations, that is segments. One is this, second is this. Make a table and show accordingly that what is the value proposition, what is the benefit you are going to give to the customers, and why this particular percentage of buying is coming from any particular segment. ठीक है, वो segment क्या होगा वो you will have to define, right? हाँ, 24 months प्लान ये बहुत इजी है, ये सब लोग बनाएंगे, चाहे वो आइडिया स्टेज में हो चाहे जहां पर हो। 24 month प्लान आप जरूर बनाइए। इसको बनाने का इजी तरीका क्या है, मेक अ टेबल ऑफ 2 rows and 4 columns। सिंपल है, 2 rows and 4 columns। जो दोनों आपने रो बनाई है वो रो होंगी ईयर 1 और ईयर 2 के लिए। The 4 columns which you have drawn, that is for quarter 1, quarter 2, quarter 3 and quarter 4, and write down in between कि आपकी उसमें प्लानिंग क्या होगी, 24 months की आपकी प्लानिंग क्या होगी, राइट? इफ यू थिंक दैट 24 months is too much, तो आप इसको 1 year का बना लो। अगर आपको लगता है 24 years is not enough time to explain your business activities, then you can make it for 36 months। लेकिन इसको 36 months से बड़ा आप मत बनाइए। Then other expectations, if you want your investor also to work with you or to advise you, तो वो सब चीजें आप लिख सकते हो। अगर आप इंक्यूबेशन सेंटर्स के चाहते हो कि आपको कंसल्टेंसी मिले या कोई एक्सटर्नल कंसल्टेंसी आपको फ्री में अरेंज करा के दी जाए, तो दोस थिंग्स यू कैन राइट। एंड दिस इज ऑल, दिस इज लास्ट स्लाइड, इसी को आपको बनाना है, राइट? सम अदर स्लाइड्स इफ यू वांट टू इंक्लूड, यू कैन इंक्लूड इट फ्रॉम योर वे। 10 स्लाइड्स में आप इसको बना लीजिए। लीन कैनवस देने का पर्पस सिर्फ इतना ही है दैट यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीन कैनवस, ठीक है ना? तो इसके अभी लीन कैनवस क्या है, इट इज ओनली द समरी, जो अभी तक हमने किया उसकी समरी है ये। कोई क्वेश्चन आपको इसमें है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। Now any question in the complete day exercise? सर ये लीन कैनवस समरी लाइक हमें ऐड तो नहीं करना ना, लाइक नहीं, अगर आप ऐड नहीं सिर्फ करती है देखना तो है। मत करो। हाँ नहीं, देखो ऐसा लीन कैनवस समरी बनाने का पर्पस क्या है, इन मेनी ऑफ द प्लेसेस यू मे फाइंड दैट competitions are done through lean canvas summary। अगर आपके पास आपकी pitch deck दिखाने का they are not having enough time, तो they will ask you only to write your business only in 1 page, and that 1 page is known as what, lean canvas summary। ओके सर, तो ओके सर, आपको तो इतने मतलब चॉइस है या हम करें इसको? नहीं ये like, चॉइस है, ये इसमें डाल- 100% चॉइस ओके होती है। इट इज नॉट डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ pitch deck। ओके सर। अच्छा, जो मैंने आपको शो किया है उसके अलावा भी if in 3-4 slides you want to add about your product or something which is not there, so that you can do from your end, ठीक है ना? Any question? Sir, I think all questions are answered. No questions. लेकिन फिर भी राहुल जी पूछ लीजिए आप सबसे, फिर आपको परेशान ना करे ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं। आप लोग राहुल, हमने कोई फोटोग्राफ ले ली है इनकी सबकी? नो सर। क्या सब लोग कैमरा अपना ऑन करेंगे? एक फोटोग्राफ हम लोग ले लेते हैं 2-3। सर आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करेंगे ना तो बेटर व्यू आ जाएगा। कुछ फोटोग्राफ ले लेना आप लोग ना, सब लोग अगर अपने कुछ कैमरे ऑन कर ले। राहुल एक बड़ा सा बना करके एक अच्छा सा कोलाज टाइप का देख लो, हाँ जी। ओनली फॉर फोटोग्राफ पर्पस। पैसे वाले में जिसमें ग्रिड बन जाती है ना,
हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वैसा कर लो। मुझे को तो नहीं हो पाएगा, आप कर लो। एक सेकंड सर, अभी बाकी लोग भी कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल। आप टाइम ले लो 1-2 मिनट का, आपको को नहीं हो। Rahul, whenever you are comfortable, please take. Whenever you think that. Participants are turning on, and I have half screen now with video on, and more are coming up. I'm just We can put this picture in our report, final report. Yes, sir. Meanwhile, also, if you have any questions, I would like to answer. सर आपने इतने डिटेल में ऑलरेडी कर रखा है. It has clarified a lot of other doubts. I'm sure for the children it's even more, but even for us who are planning, and working on some stuff. Thank you so much. मैम यही तो कर रहा हूँ मैं PhD एंटरप्रेन्योरशिप में, सबसे एक यही सब्जेक्ट आता है और कुछ आता भी नहीं है। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं मैम, इनके लिए आप लोग भी देखिए कि क्या अपॉर्चुनिटीज निकल सकती है। वी आर हैविंग इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्ट्रीम। हमारी इंजीनियरिंग की गर्ल्स तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं। कंप्यूटर साइंस वगैरह में कुछ अच्छी लड़कियां जो कि मतलब दे आर रियली, मतलब कि दे आर हैविंग कैपेसिटी टू चेंज। और मैकेनिकल ब्रांच also we are having, architect में we are having girls. This BBA we have started last year only, और MBA हमने इस साल स्टार्ट किया है। Okay, now everyone can look into the camera. I have full screen of the participants with the camera turned on. Rahul sir, do we have to put our videos on? Yes, on ma'am, you can so that turn sir on. can Ma'am. see us? Yes, ma'am, you can turn Okay. on. Yes, sir. Taken. We have almost. Thank you, Rahul. Thank you. This work has been done. Yes, yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So thanks to all. Okay, bye bye. Thank you, Rahul sir. Thank you, Aurora sir. It was a wonderful session. Lot of information. Thank you, ma'am. From now onwards, I will be putting some slots in the group where we can have interactive session or doubt if any of the student or any member you have, and if anyone want to present, you can all submit. I think the pitch deck assignment now in the Google Classroom. For any doubt, you can always reach us on the WhatsApp group that is open for all to post the message. And that's it. So Rahul sir, effectively now our classes are over क्या? Yes, ma'am. तो Our pitch deck classes are over. सबमिट के बाद, सबमिशन के बाद हमारा कोई एग्जाम या कुछ होगा सर? Yes, ma'am. वाइवा या कुछ? Yes, our written exam is there. It is expected to be in last week of December or first week of January. Actually, as most of our participants are students of IGD2W and they have their random examination for 20th December. So in coordination with examination department, we are finalizing a date, and it can be either somewhere third or fourth week of December, or then after the random examination ends, that is in the January 1st or second week. ठीक है सर, So ठीक है. we will be finalizing that.
In the जी, meantime, all the material is in Google Classroom, and if anything is required, any particular session recording or anything, all can reach me. Just specify me the date or the speaker you want, and if you can specify date, it will be easy to me to locate and help you out. sure, sir. Thank you so much. Thank you. So the paper will be of open book type or? Yes, sir, it will be open book type. It will be easy in nature. We have included multiple uh, options to attempt from, and it will be in form of Google Forms only, where you can write on paper, or you can type in or upload PDF, scanned PDF, or everything. Thank you, sir. So I think we can end today's session now.